আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও তার বাজার নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া। ভারতীয় মিডিয়া বরাবরই দাবি করে আসছে, ফ্রি ট্রেড চুক্তির ফলে বাংলাদেশি পণ্য ভারতের বাজারের বুকে ভারতীয় পণ্যের স্থান দখল করে ফেলেছে। ভারতের পোশাক শিল্পের ধসের জন্য ভারত বাংলাদেশকেই দোষারোপ করে। ভারতীয় কোম্পানিগুলো ভারতের সরকারকে চাপ দিতে থাকে বাংলাদেশি পণ্যগুলোর উপর ট্যাক্স বসানোর জন্য। ভারতীয় সরকার বাংলাদেশি অনেক পণ্যের উপর ট্যাক্সও বসিয়েছে অবৈধভাবে। এ নিয়ে আমরা এর আগে অনেক ভিডিও তৈরি করেছি। ভারত বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স পণ্যের উপর ট্যাক্স বসিয়েছে, বাংলাদেশের ভোগ্য পণ্যের উপরেও ট্যাক্স বসিয়েছে ভারত। এবার বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উপর নজর তাদের, অথচ বাংলাদেশে ভারতীয় কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য বিনা বাধায় বিক্রি করছে। আমাদের সরকার চুক্তি অনুযায়ী কোনো প্রকার বাধা প্রদান করছে না। ভারতীয় সরকার অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশি পণ্যের উপর ট্যাক্স বসিয়েই আসছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখন তারা দেখলো বাংলাদেশকে চীন তাদের বাজারে ফ্রিতে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে, তখন আবার ভারত সরকার নড়েচড়ে বসেছে। বাংলাদেশ যেন ভারত বিরোধী না হয়ে যায়, সেজন্য তারাও ভারতের বাজারে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে আগের মতোই। আর এই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মালিকরা। আমরা জানি ভারতের পোশাকের বিশাল বাজার রয়েছে, আর ভারতের বাজারে যদি বাংলাদেশি পণ্য ঢুকতে পারে, তাহলে আমাদের রপ্তানি লাভ মেরে $5 বিলিয়ন বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক দামে কেন সস্তা হয় তা নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া। ভারতীয় পোশাকের বাজার $150 বিলিয়ন। নিজেদের এই বিশাল বাজার থাকার পরেও কেন ভারত বাংলাদেশের পেছনে, তা নিয়েও তারা আলোচনা করছে। বাংলাদেশের পোশাকের মান যথেষ্ট ভালো ও দামে সস্তা, আর এজন্যই ভারতীয় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সামনে টিকতে পারেনি। এবার ভারতের বাজারেও শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশি পণ্য ও ভারতের তৈরি পণ্যের যুদ্ধ। এ বিষয় নিয়ে আমরা খুব দ্রুতই আরও একটি ভিডিও বানাবো ইনশাআল্লাহ। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে বাংলাদেশের অবস্থানের কারণগুলোর ব্যাখ্যা করছে ভারতীয় মিডিয়া। কেন বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম পোশাক রপ্তানিতে ভারতের আগে, তা নিয়েও আলোচনা করছে তারা। আর সেই ভিডিওটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। भारत दुनिया का नंबर 1 कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के मामले में ये 5th नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर जर्मनी, 3rd नंबर पर है बांग्लादेश, 4th पर वियतनाम और उसके बाद फिर 5th नंबर पर आता है भारत। भारत टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से भी पीछे है। तो ऐसा कैसे हुआ, भारत इन जैसे देशों से भी पीछे कैसे रह गया, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $150 बिलियन है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2% है और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के बाद 2nd नंबर पर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टेक्सटाइल के काम में लगभग 45 मिलियन लोग डायरेक्टली और 65 मिलियन लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। भारत के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 12% का है। अब अगर हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $46 बिलियन का है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14% है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 10 मिलियन लोग काम करते हैं, जिसमें से 4.4 मिलियन लोग डायरेक्टली काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की बैकबोन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% है। 2005 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा था, लेकिन 2020 आते आते बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो यह है कि बांग्लादेश ने भारत से कॉटन, जूट और फैब्रिक का रॉ मटेरियल खरीदा और अपने यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी मजबूत किया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का लेबर लॉ भी है। यहाँ पर आपको लेबर यूनियन को लेकर लड़ाई झगड़े और स्ट्राइक्स बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 200 से ज्यादा लेबर लॉज हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि इनको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है और इसी वजह से भारत के टेक्सटाइल फॉर्म की ग्रोथ रुक जाती है। 2015 में इन्हीं लेबर इश्यूज के चलते लगभग 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। लेबर को लेकर इतनी प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगी। उनके यहाँ का लेबर लॉ इतना सही है कि वहाँ का लेबर एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा होता है। वहाँ का लेबर स्ट्राइक्स और पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ने का एक कारण यहाँ की चीप लेबर भी है। जहाँ भारत में एक गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $257 है, वहीं बांग्लादेश में ये $101 पर मंथ है। वहीं वियतनाम में एक गारमेंट वर्कर की
एवरेज इनकम $216 है। तो बांग्लादेश में चीप लेबर होने की वजह से वहाँ के प्रोडक्ट्स का दाम भी कम होता है। वहीं भारत में लेबर कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के गिरने का एक कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इस टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर एक चीज की डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाता है और इस टाइम की वजह से दूसरे देशों के प्रोडक्ट तब तक एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा डिले होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अब वैसे बांग्लादेश में भी इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया। तो इस चीज को कम करने के लिए बांग्लादेश ने अपने पोर्ट्स के पास ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोल दी, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट का टाइम ऑफ कोर्स कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च की बचत भी हुई और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। भारत ने कभी भी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वहीं बांग्लादेश इस मामले में भारत से कई कदम आगे चल रहा है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ के लेबर्स को ट्रेनिंग दी, इससे हुआ ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ी है और प्राइस भी कम हुआ है। वैसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि इन्हें यूरोपियन मार्केट में फ्री एक्सेस मिलता है। वहाँ पर इन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री होते हैं, वहीं भारत को वहाँ 9 से 10% की ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइस और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर भारत की टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए भारत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने लेबर लॉ को ठीक करें। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को यूपी, बिहार और एमपी जैसी लो अर्निंग स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर मिल जाएगी और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होगा। या फिर कोई आदमी अगर इन स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है तो उनको टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत है। लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी बात यह है कि कॉटन इन एरियाज में ग्रो हो जाता है। স্বাধীনতার পরের বছর মাত্র 34,84,00,000 মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। তার মধ্যে 90% বা 31,30,00,000 ডলারের পণ্যই ছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। পাটের পর প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল চা ও হিমায়িত খাদ্য। যদিও মোট রপ্তানিতে এই পণ্য দুটির অবদান ছিল 1.25% কাছাকাছি। 50 বছর আগের পণ্য রপ্তানি চিত্রের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চেহারা বদলে দিয়েছে তৈরি পোশাক খাত। পাটকে হটিয়ে পণ্য রপ্তানির শীর্ষস্থান দখল করেছে তৈরি পোশাক শিল্প। 5 দশকের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে 96 গুণ। প্রায় 40 লাখ গ্রামীণ নারী পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সহযোগী শিল্পের বিকাশ সহ অনেক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে পোশাক শিল্প। চীনের পর একক দেশ হিসেবে দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। পরিবেশ বান্ধব পোশাক কারখানার সংখ্যার দিক থেকেও বিশ্বে সবার উপরে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে তৈরি পোশাক খাত বড় বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে, শক্ত ভিত গড়েছে বিশ্ববাজারে। এত সব অর্জন সম্ভব হয়েছে যাদের জন্য, তারা আমাদের শ্রমজীবী ভাই বোন। তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে বাংলাদেশের পোশাক আজ বিশ্ববাজারে পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। কিন্তু যাদের জন্য আমরা এ মর্যাদা পেয়েছি, সেই সব শ্রমজীবী ভাই বোনেরা লাঞ্ছনার শিকার হয় পদে পদে, বঞ্চিত হয় তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। এসব শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও এগিয়ে যাক আমাদের পোশাক খাত, এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।